हाँ जी, शुरू ਅਸੀਂ ਨੇ प्रीफेस तो करना। प्रीफेस इज समझे 45 सेकंड प्रेजेंटेशन। 45 सेकंड प्रेजेंटेशन ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ भी आ सकता करण है आपकी आवाज नहीं आ भी रही हो यार। सकती है। तो उसके बाद उसने आवाज क्लियर नहीं है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं रास्ता तो करण कनेक्टिविटी आपकी थोड़ी वॉइस ऑडिबल नहीं है। आपकी वॉइस, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही करण, हेलो आवाज नहीं आ रही थोड़ी वीर जी। So the main idea of this 45-second presentation is to start a conversation with the new person so that we can help them ask us the question about what it is actually that we do. So in order to not being salesy, ताकि हम उनको ऐसा ना लगे कि हम कुछ बेचना चाहते हैं, जो कि हमारी कभी भी इंटेंशन नहीं होती है, because we do not want people to think that we are into sales, we sell something. We would be very fair in our approach. So this is a kind of approach which we use to talk to people while we are talking to them casually in a restaurant or on a phone, or maybe chatting with them. Before we are going to disconnect the phone, or we are about to leave to our homes, about to go to the parking, we simply ask them a very simple question about, and whatever the name of the person may be. Let's say I'll take Vinay as an example. Ask Vinay, we have been talking, and then after we are about to leave, I say, Vinay, have you ever thought about what it would be like to own your life? Vinay, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप अपनी लाइफ के मालिक हों, जिंदगी के मालिक हों, तो कैसा हो? So Vinay may get a little bit, थोड़ा सा उनको अजीब लगेगा, because ऐसा सवाल किसी ने उनसे आज तक नहीं पूछा है. And then he may say yes or no or something, he may add to it. Then I immediately say, okay, Vinay, let me explain it to you what it means. Let me tell you what it means to own your life. So I explain it to him, which is written in the preface of the book. And I explain, see, Vinay, we have 24 hours in a day, and we have our own daily chores to do. We sleep, we eat, we get ready, we go to work, we travel to work, we travel back from work, we have a family. All these things, when we do, we spend a lot of hours. So we have to subtract these hours from 24 hours. और उसमें से subtraction के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, हमारे पास दिन में 2 and 3 hours बचते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि I own my time and my life. तो उसमें अगर हमारी कोई desire है, लाइफ में हम कुछ करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं. So the time is too less, 2 to 3 hours is less, and that time could be in the night or early in the morning, not suitable time. And moreover, if it is a right time also, the desire or the hobby could be expensive, we lack money. So basically, either we don't have time or we do not have money. That's a basic problem of all the people that we know. So दो चीजें हैं, टाइम और पैसा, ये कभी भी इकट्ठा नहीं होती हैं. And in order to make this kind of time and money, we go to work, we find a job, or we go into a profession or start a business. And it takes 40 to 45 years in order to say that I will retire, that I have time and money. 40-45 साल काम करने के बाद लाइफ में I think that I will have time and money.
But what happens is कि 40-45 साल 40-45 years काम करने के बाद our age reaches to 60-65, and by the time we might also invite some lifestyle disease to us like diabetes or blood pressure. कोई भी health का कोई challenge आ सकता है. So there is always a risk. So the research says that if we have these three things together at one time, that is time, enough money, and a good health at one time, we can call ourselves owner of our lives. हम अपनी life के मालिक कहला सकते हैं. So this being a problem, universally a problem that इन तीनों चीजों में से कोई ना कोई चीज missing रहती है, which is why we can't say that I own my life. So I have discovered a way by building a home-based business. I'm learning how to own these three things: time, money, and health. And I follow a system which is so simple, anybody can do it. And I don't have to be a salesperson. I don't have to sell anything, because it's a business, then it may strike like I have to sell. No, I don't have to sell like a salesperson. And it doesn't take much of your time, because we do it at home. It's a home-based opportunity, so we do it at home. So then I say, Vinay, see, I don't know whether you have any significance of these three things: time, money, and health in your life, because I never asked you this. But today that I have asked you, आज मैंने आपसे पूछ ही लिया है कि time, money, health अगर इकट्ठा हो तो आपको कैसा लगे. I would want to know, what do you think about having these three things together? Most of the time, Vinay or anybody will say that would be great. अगर मेरे पास तीनों चीजें इकट्ठी हों, I would be feeling good. They try to add something to it. They share one or the other dreams or something. I think have you lost Suki? क्या है? I want more. No, I'm there. Maybe distraction होगी आपको, औरों को आ रही है बात. So then maybe आपको information चाहिए होगी और. So I asked permission that इसकी और जानकारी लेने के लिए आपको information चाहिए होगी. And Vinay says, yes, I would be interested to get some information. Or he may say, no, I am not. Thank you very much. So in either case, if he says, yes, I want more information, then you say, okay, because of the lockdown period, we use this PDF file. We say, all right, what I do is I will send you some information to read. Remember, we say information, we don't say book. So I will send you some information that you read, which will take 1 or 2 hours to read. And once you have read that, once you have gone through it at your home, I will get back to you and talk to you about it. And then we can discuss about it further, so that जो कुछ भी आपने उसमें से पढ़ा है उसके बारे में हम बात कर लेंगे जब भी आप इसको पढ़ चुके होंगे. So this is the 45-second presentation. We don't sell anything. We don't force anybody to get it. It's just a regular conversation with a warm market. So this is always done in a warm market, the people we know. Now, this 45-second presentation, if done correctly, they will take the information and read it further. And is information mein you will learn what is multi-level marketing, uska definition, and how is it misunderstood and things like that, which maybe Parmeet will cover now. And you will also learn what to do, and also learn what not to do and how to do it. So this information will cover most of the area of this business where people have misconceptions and misunderstandings, so that those misunderstandings will be cleared. And one thing has to be clear here is that anybody who you do this 45-second presentation or loan the information to them, do not ask them to make a decision immediately. They have to make a decision of finding out what it is, and then the second decision is to learn further what it could be deeply. Then we go into these trainings. Parmeet, if you're ready, I will give it to you, or you want me to do the first chapter also, I can do No, that. I'll take Paji. All right, No issues. over to you. Over to you. Thank you, Suki. Now हम बात करेंगे chapter number 1, introduction to MLM. So जो chapter के starting में डॉन पहला जो writer है इस book का, वो लिखता है कि
multi-level marketing, one of the fastest growing yet most misunderstood method of moving products in use today. तो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, हॉटली डिस्कस्ड है, बट लीस्ट अंडरस्टूड मेथड है प्रोडक्ट्स को मूव करने का. डॉन ने ये जो बुक है इसको जब उसको 5-6 साल हो गए थे बिजनेस करते हुए, तब उसने एक ट्रेनिंग मैनुअल डेवलप किया है इस बुक के थ्रू सिखाने के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लानी थी उसको अपने बिजनेस के लिए. तो उसने इस बुक को राइट डाउन किया, और जो उसका पर्पस था कि वो ये कन्वे कर सके कि एमएलएम क्या है और एमएलएम क्या नहीं है, और नए पर्सन को हमने कैसे बताना है इफेक्टिवली वे से. ठीक है ना. तो एक दूसरे बंदे को या नए बंदे को एमएलएम के बारे में बताने के लिए उसने इस बुक को डेवलप किया. इसकी टोटल 10 प्रेजेंटेशन उसने लिखी, जिसमें से पहली प्रेजेंटेशन आज हम डिस्कस करेंगे कि एमएलएम क्या है. एमएलएम की फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग. और मल्टी लेवल मार्केटिंग को भी अगर हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो मल्टी लेवल एक अलग चीज है, मार्केटिंग एक अलग चीज है. तो दोनों में से हम पहले डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग क्या चीज है. मार्केटिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट का या सर्विस का जाना. मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसने चीज को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो चीज दूसरे बंदे के पास गई, इस मूवमेंट को हम कहते हैं मार्केटिंग. ठीक है जी. या कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसकी जो सर्विस उसने दूसरे बंदे को, कस्टमर को प्रोवाइड की, जो हलचल हुई, जो आदान प्रदान हुआ सामान का, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग. और मल्टी लेवल का मतलब है वो सिस्टम जिसके थ्रू आपको जो आपने मार्केटिंग की है उसका कंपनसेशन कैसे मिलना. जो लोग ये काम कर रहे हैं प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, उनको किन किन लेवल पे कैसे कैसे पैसा आएगा, उसका मतलब है मल्टी लेवल. तो इन टोटल मल्टी लेवल का मतलब है ज्यादा जगह से आमदन का, जहाँ ज्यादा लेवल से या ज्यादा जनरेशन से आपको पैसा आना, उसको हम कहते हैं मल्टी लेवल. तो किसी चीज की मार्केटिंग करना और उस मार्केटिंग के बाद आपको जगह जगह से पैसा आना, इस चीज को टोटल मिला के हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टी लेवल मार्केटिंग. वैसे प्रोडक्ट को मूव करने के कई इसके अलावा भी मेथड है, जिसमें सबसे पहला जो नोन मेथड है वो है रिटेलिंग. जैसे हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, रिटेल स्टोर पे जाते हैं, वहां से हमने सामान लिया, पैसे दिए, घर को आ गए. दूसरा मेथड आ जाता है डायरेक्ट सेल्स. के घर आके लोग सामान बेचते थे, या आप ऑनलाइन प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल में लोग आपके घर, जैसे टपरवेयर या कुछ ऐसी कंपनी जो डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग. तीसरा जो हमने अभी डिस्कस किया मल्टी लेवल मार्केटिंग. चौथा आ गया मेल ऑर्डर या ऑनलाइन शॉपिंग. जैसे हम नए सिस्टम चले हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी साइट पे जाके प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, पैसे दिए, कुछ दिनों बाद चीज घर पे आ गई, उसको हम कहते हैं मेल ऑर्डर सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम. पांचवा मेथड जो इसमें प्रोडक्ट की मूवमेंट नहीं होती लेकिन एक सिस्टम बना लिया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पिरामिड सेल्स. दैट इज सेल्स विदाउट प्रोडक्ट, जो ज्यादा कंफ्यूज करता है मल्टी लेवल मार्केटिंग को, क्योंकि उसमें लोग तो होते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं होते. तो दैट इज कॉल्ड पिरामिड सेल्स. तो बेसिक डिफरेंस जो मल्टी लेवल और डायरेक्ट या रिटेल सेल्स में होता है कि उसमें वी आर इन अ बिजनेस फॉर योर सेल्फ. आप अपने लिए काम करते हैं, आप सामान खरीदते हो होलसेल कंपनी से, और जैसे ही आपने अपने होलसेल पे सामान खरीदा तो आपके पास एक ऑप्शन होती है उस सामान को रिटेल करने की, क्योंकि उसमें एक रिटेल मार्जिन होता है. पर यहाँ पे मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ, डॉन भी इस चीज को क्लियर करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको कभी भी सामान बेच के पैसा नहीं आएगा. पैसा तो आएगा लेकिन ज्यादा जो बड़ी सक्सेस है, जहाँ लार्जर सम ऑफ इनकम, जहाँ जो रियल सोर्स ऑफ इनकम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, वो आपको तभी आएगा जब आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो. और यहाँ पे जैसे अब हमने सेलिंग की बात करी है,
तो जैसे ही सेलिंग की या रिटेलिंग की बात आती है तो कुछ नेगेटिव से इम्पैक्ट हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं कि जैसे हमने सेलिंग करनी पड़ेगी, अनजान लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। पर ऐसा भी नहीं है कि बिना प्रोडक्ट मूव के आपको कुछ पैसा आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हैज टू मूव। अगर प्रोडक्ट मूव नहीं होगा तो किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो मल्टी लेवल का जो अगला मेथड, जहाँ अगला सिस्टम हम समझते हैं, या जिसका दूसरा नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। आप अपने लिए एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हो, एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, उसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप किसी बंदे को, जिसको भी आप नए बंदे को अपने साथ जोड़ते हो, तो आप उसको क्या करते हो, स्पॉन्सर करते हो। और स्पॉन्सर होने के साथ ही आप उसको सिखाते हो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस जो है वो कैसे बढ़ेगा। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक और बढ़िया बात आ जाती है कि ये वर्ड ऑफ माउथ, मतलब अपने बंदों को आप खुद ही बताते हो। इसमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती कंपनियों को। और जब कंपनी को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती तो उसके पास बहुत सारा पैसा बच जाता है, जिसको कंपनीज अपनी रिसर्च में लगाती हैं। और जो आप नेटवर्क क्रिएट करते हो उसमें आपको पैसा देती है। ठीक है, तो आप जब कंपनी अपना पैसा अपनी रिसर्च में डेवलप करेगी, उसको बढ़िया प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको पेटेंटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, और आप सिंपली जो प्रोडक्ट ऑलरेडी घर पे यूज कर रहे हो आप उसको सिर्फ रिप्लेस करते हो। एमएलएम में और डायरेक्ट सेलिंग में जो बेसिकली बड़ा बड़ा डिफरेंस समझें तो वही है कि एमएलएम में आप स्पॉन्सर करते हो बंदे को और टीच करते हो कि ये सिस्टम कैसे सिखाना है। जैसे हम नए बंदों को लेके आ रहे हैं और इन जूम मीटिंग्स के थ्रू सिखा रहे हैं उसको कि उसने अपना नेटवर्क कैसे डेवलप करना है। और वेयर एज डायरेक्ट सेल में आप रिक्रूट करते हो, जैसे कंपनीज एम्प्लॉय रखती हैं अपने बंदे, उनको रिक्रूट करते हैं। और रिक्रूटमेंट का मतलब ही ये होता है कि काम करवाना, उस बंदे ने काम करना है और आपने उसको पे करना है। वेयर एज एमएलएम में अगर आप किसी बंदे को स्पॉन्सर कर देते हो तो ये फिर जो बंदा उसको स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर की जिम्मेदारी बन जाती है, और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिसको लेके आया है उसको सिखाए और इसका बिजनेस बिल्ड करने में मदद करे। ठीक है ना। तो जैसे मैं किसी बंदे को आगे, मतलब परमीत किसी बंदे को स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये परमीत की जिम्मेवारी है। नंबर 1 उसकी जिम्मेवारी क्या है कि वो उसको क्लियरली समझाए मल्टी लेवल मार्केटिंग होती क्या है। दूसरी चीज, उसका नेटवर्क डेवलप करने में मदद करे। कब तक? जब तक उसको खुद डेवलप करना नहीं आता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पॉन्सर की कि उसने टीच करना है अपने बंदे को। क्या टीच करना है? अबाउट द बिजनेस, अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ टू ऑर्डर, गेट स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट करना है, उसकी टीम कैसे डेवलप करनी है, और टीम में नीचे लोगों को कैसे डेवलप करना है। ये अभी आपको समझ नहीं लग रही होगी जो बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो कमिंग प्रेजेंटेशन है, इसके अगला चैप्टर है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क कैसे डेवलप करते हैं। स्पॉन्सरिंग का मतलब है कि आप एमएलएम का बिजनेस बढ़ा रहे हो और इसमें आप अपने बॉस खुद होते हो। वेयर जब आप रिक्रूट होते हो किसी के नीचे तो वो आपका बॉस होता है। और अगला मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में अगर आप काम कर रहे हो और किसी दिन जाके आपने क्विट करने की सोची, जो भी आपने उसको काम किया है उस कंपनी में, उसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी छोड़ दी, आपको उसके दिन के बाद कोई भी पैसा नहीं आएगा और यू विल लूज योर मनी। वेयर एज इन एमएलएम आप कहीं भी चले जाओ, ये काम सीख के मैं दावा करता हूँ, सुक्की बाजी भी ये दावा करते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी नस्ल के बंदे के साथ बैठ जाओ, आप ये बिजनेस अपना कर लोगे। मैंडेट ये है कि आप इस बिजनेस को सीख, और ये बिजनेस आपका हर जगह ग्रो करेगा, क्योंकि नेटवर्क ही इतना डेवलप हो जाएगा कि आप चाहकर भी, अगर आप छोड़ भी दो एक लेवल पे जाके, तो चाहकर भी आपको पैसा नहीं छोड़ेगा। पैसा इसमें इतना है, पैसा बहुत आएगा। और
इस बिजनेस की शुरुआती बात खूबी यही है कि आदमी थोड़े से पैसे के लिए आता है, लेकिन जैसे जैसे उसको समझ पड़ती जाती है, जैसे हमने जो बंदे इस प्रेजेंटेशन को आज पहले दिन देख रहे हैं और जिन बंदों ने कल पेंटागन ग्रोथ देखी है, दोनों की थॉट में बहुत सारा डिफरेंस है। क्योंकि आज बंदा 100, 200, 1000, 10,000 एक्स्ट्रा के लिए आएगा, लेकिन जब पेंटागन ग्रोथ देख लेते हो फिर आपको इसके सही विजन का पता लगता है। और लास्ट में इसमें एक डिफरेंस और भी होता है कि जो और मेथड हैं या और बिजनेसेस हैं, उसमें एक पिरामिड बनता है जिसमें जो टॉप पे होता है, जो कंपनी का ओनर या जो आपका बॉस है, वो अगर टॉप पे है तो आप चाहकर भी उससे ऊपर नहीं जा सकते। वेयर एज मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने स्पॉन्सर से ज्यादा बड़ा बिजनेस ज्यादा जल्दी खड़ा कर सकते हैं। तो उसका पिरामिड सीधा होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में पिरामिड जो है उल्टा होता है। अगर ये मतलब देखना भी चाहते हो तो सुक्की पाजी आई थिंक शेयर कर देंगे। ये लास्ट वाली एक फिगर है इसमें, जो पिक्चर है पिरामिड की, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। सुखी पाजी आगे जी। हाँ थैंक यू। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पिरामिड दिखाया गया है, ये वाला जो पिरामिड है, ये आम हमारे ट्रेडिशनल वेज में या ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपका एम्प्लॉय आपसे सीख के आपके ऊपर आ जाए या आपसे बड़ा बिजनेस कर ले या आपके साथ दुकान खोल ले। ना ही कोई बॉस चाहेगा कि कोई उसका नीचे वाला एम्प्लॉय उसकी सीट को ले ले। वेयर एज इन एमएलएम, ये देखिए एमएलएम में बड़ा क्लियर दिखाया है ये वाली पिक्चर कि ये पिरामिड उल्टा है, नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ मुंह खुला है। कोई भी आदमी कैसे भी पैसा कमा सकता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको ये जो बिजनेस है, आप बहुत कम समय में सीख के मिलियन बिलियंस कमा सकते हो। दैट इज एंड फ्रॉम माय साइड सुखी भाई। Perfect ji. Thank you so much. Perfect, Parmeet ji. Yeah, this introduction always gives me few points to learn every time. जब कभी भी मैं किसी और के मुंह से ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर सुनता हूँ तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे आज क्लियर हुआ है कि आई मीन क्लियर पहले भी है बट अभी आज परमीत के कहने से इट हैज अगेन स्ट्रक मी के डायरेक्ट सेल्स को जब भी मैं छोड़ूंगा तो देन आई हैव टू गो फाइंड अनदर डायरेक्ट सेल्स कंपनी, गेट माई सेल्फ रिक्रूटेड, तो मुझे पैसे आएंगे। Whereas MLM में if I change my place, जो वो डॉन यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं, क्योंकि यूएस में कनाडा में लोग बहुत जल्दी सिटीज चेंज करते हैं अगर उनको कोई जॉब मिल जाए या कोई और फैमिली के रिक्वायरमेंट्स हों, तो जब एरिया चेंज करते हैं तो उनकी जॉब भी छूट जाती है। लेकिन एमएलएम में ऐसा नहीं है। जो बिजनेस आपने किसी सिटी में किसी कंट्री में बनाया था, दैट गोज अलोंग विद यू बिकॉज उसका पैसा आपके अकाउंट में आता रहता। सो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी विद मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्या मैं यहीं कर सकता हूँ, क्या मैं इसको साथ में ले जा सकता हूँ। ऑब्वियसली यू कैन टेक इट अलोंग विद यू इवन इन अ सिटी। एंड जब आप इसको बड़ा कर लेते हो, जैसे आपने पेंटागन की बात की है, उसके बाद यू कैन leave as a legacy with your children and grandchildren also. So ये तब तक चलता है। It works like a royalty. मुझे जो आज बात एकदम जो स्ट्राइक की है, so really happy के I have listened to Parmeet saying that. और कोई भी other people also can add value to this so that इसको थोड़ा सा हम हर perspective से समझ लें different तरीके से। See, other thing जो इसमें मुझे बड़ी अच्छी लगी है बात, मैंने कल भी शेयर किया था कि
जो वर्ड स्पॉन्सर है वो बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल वर्ड है। स्पॉन्सर जो कमिटमेंट लेता है और आपके लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए, और वो कैसे लेता है कमिटमेंट और क्या होता है वो बेसिकली कमिटमेंट क्या, कमिटमेंट टू टीच सो दैट यू कैन बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे अभी हमने डिफरेंस में भी देखा था पिरामिड और मल्टी लेवल मार्केटिंग में कि यहाँ पर जो स्पॉन्सर होता है वो अपनी डाउनलाइंस को टीच करता है या सिखाता है, और ना सिर्फ ये सिखाता है बल्कि ये भी सिखाता है कि कैसे सिखाना है। तो वो बड़ी पावरफुल बात मुझे लगी मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जो मेरे को ऐड करने। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟ, ਲੇकिन मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂगा, आई वांट टू स्पीक जो मिसअंडरस्टूड किया जाता है एमएलएम को रिटेल डायरेक्ट से। तो वी नाउ वी आर अंडरस्टैंड भी जो एमएलएम को पहले लोगों ने, जिन्होंने भी पहले पहले एमएलएम की है, तो उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, तो इसको कैसे उन्होंने। हेलो, यस कर दिया, ठीक है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, रिटेल और डायरेक्ट में जे उन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको किसी ने जो सिखाया ही नहीं भी एमएलएम को करना किस तरीके से है, इसमें हमको क्या करना और क्या नहीं करना। ये सबसे बड़ी जो उनका रहा, उनकी प्रॉब्लम रही है, उनका मिसफॉर्चून रहा, भी उनको किसी ने नहीं सिखाया। और दूसरी बात, दे आर रिक्रूटिंग फॉर द सेल्स पर्सन ओनली। उन्होंने सिर्फ सेल्स पर्सन ही रिक्रूट किए हैं। और आज मेरी दोपहर दिन में भी एक आदमी से बात हुई है, तो ही इज डूइंग एमएलएम फ्रॉम 2001 टू 2016। सो उसको सिर्फ इतना ही पता है भी इसमें हमको सेल करना है, नथिंग एल्स। तो जो लोग ज्यादा इसको करने के बाद एक बार बहुत एनर्जी आती है पहले, लेकिन बाद में वो एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो रियल एमएलएम करने का तरीका है, जो नेटवर्क बनाना है, जो नीचे काम करना है, जो सिखाना है, और जो पावर स्पॉन्सरशिप में है, जो हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें उसको जब अंडरस्टैंड कर लेता है बंदा, तब उसे एमएलएम करने का पता लगता है भी आई एम रियली डूइंग एमएलएम, दिस इज एमएलएम। तो यहाँ पर हम पहले तो यही क्लियर करेंगे भी हमें इसमें क्या करना क्या नहीं करना। तो इसीलिए ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड है भी लोग एमएलएम कर तो लेते हैं, नाम कर लेते हैं मैं एमएलएम कर रहा हूँ, लेकिन करते वो रिटेल ही हैं, करते वो डायरेक्ट ही हैं। राइट, बिल्कुल सही, परफेक्ट। इसमें मैं भी कुछ अपना ऐड करना चाहूंगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो एक ये प्रोसीजर है कि आपने पहले लर्न करा, फिर टीच करा, फिर कैसे टीच करना है वो भी सिखाया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो रही है कि आप वर्टिकली डेप्थ में जा रहे हो। तो जब आप डेप्थ में जा रहे हो तब आपका नेटवर्क रियली स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि वो क्या है कि आपने एक उसको ऑटो मोड में डाल दिया। जब आप 3 लेवल्स नीचे चले गए तो अपने आप ही वो ऑटो मोड में आगे रेप्लिकेट होना ही है।